all, welcome back to BioRock's channel. Today in this video, we'll be learning about the acute kidney injury, okay, AKI. Earlier, this was being called as acute renal failure, okay. So there are multiple purposes, that is multiple causes, which are responsible for the acute kidney injury. Okay, we'll be learning about all this. But remember, how is it diagnosed is, if usually a person is going to be based on his body mass, okay. So usually what VP is going to be, or urinate is going to be, of the range of 0.5 ml per kg per hour. This is a usual census, or the what you call is reading, which is actually being considered as a normal range. Okay, so what I'll do is, let me try to write it and explain such that your children can understand this pretty well. So what we are learning is going to be about the acute kidney injury. Okay, this acute kidney injury is abbreviated as AKI. Okay, this was earlier called as what? Renal failure, acute renal failure. Now, coming on to the acute kidney injury, it's been usually diagnosed when a person's urine, generally is going to be lower than 400 milliliters or ml per day. This is very, very less. Usually in a normal person, the urine that we urinate is in the range of 0.5 ml per kg per hour. Okay, this is the range. In these, see, when we learned about the structure of nephron, ultrafiltration, we spoke about the 180 liters per day, the filtrate produced, but we pee only the range of 1.8 liters per day, which is 1% of the 180 liters. But here a person who has an acute kidney injury is going to pee how much? Less than 400 ml per day. And we call this condition as oliguria. Okay, so he is pouring up, or he is urinating very, very less. Sometimes it might be even lesser than 100 ml, and we call this condition as anuria. Okay, where this is going to be equivalent to no urine, actually very, very less. So usual diagnosis is going to be when the patient comes complaining about the low production of urine. Okay, and secondly, the serum creatinine levels usually increase during the acute kidney injury. So this is the first diagnosis that we can, and we can even check out the serum creatinine levels. If they increase, these are the indications that the person might be undergoing acute kidney injury. Okay, so these are the basic things, and this terminology is important for you. This is oliguria. Okay, the main three causes for your acute kidney failure are, the first one is going to be the pre-renal, okay, cause, and secondly, we are going to have another thing which is going to be your intrinsic, or we call it as intra-renal, okay, and the third cause might be the post-renal, based on where is the problem running. Okay, so the three main causes, I'm speaking about the three main causes for the acute kidney failure. It might be pre-renal, it might be intrinsic, it might be post-renal. See, pre-renal is something we know that our kidneys are having these ducts called as your urinary, that is ureters, which open into the urinary bladder, right?
and we have the blood supply where we can see that the aorta carrying the blood, and at last the renal artery. Okay, so it is aorta carrying the blood. Next we have is the renal artery. Okay, and internally the renal artery is branching as what? Afferent arteriole. Okay, so now what happens is, if the something goes wrong at the level of this aorta or the blood supply to the kidney, somewhere around here, if something awry, what is awry? Something wrong goes, अगर कुछ गलत गया है, किस लेवल पे? ब्लड सप्लाई के लेवल पे, स्पेशली यहाँ पर आयोटा में या ब्लड फ्लो में, दैट इज रीनल आर्टरी के ब्लड फ्लो में या एफरेंट आर्टरियोल के ब्लड फ्लो में कुछ प्रॉब्लम हुआ, और वो हो सकता है, उसको हम लोग कैटेगराइज कर सकते हैं क्या? प्री रीनल बोलते हैं, क्योंकि अभी तक ये वाला इंजुरी किडनी के अंदर नहीं है, वो हो रहा है किसके वजह से? somehow around like the blood supply to the kidney, या इस जगह पे हो रहा है कुछ प्रॉब्लम. Now coming on to intrinsic, yeah, intrarenal is nothing but when something is going to go wrong in the kidney. In the sense, kidney का मतलब क्या होता है? यहाँ पर functional units कौन है? नेफ्रॉन. So नेफ्रॉन में अगर कुछ रॉन्ग जा रहा है या कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर के अंदर, देन वी शुड कॉल इट एज इंट्रा रीनल बोल सकते हैं. ओके, नेफ्रॉन भी हो सकता है, नहीं तो किडनी के अंदर का इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो है, सॉरी इंटरस्टिशियल टिश्यू जो है, अगर यहाँ पर भी कुछ प्रॉब्लम चल रहा है या कुछ इन्फेक्शन हो रहा है, तो दैट आल्सो विल बी लीडिंग टू द एक्यूट किडनी इंजरी. ओके, अगर ब्लड सप्लाई करने वालों में अगर प्रॉब्लम हो के इंजरी हो रहा है, तो दैट इज प्री रीनल. अगर आपके किडनी में, नेफ्रॉन में या इंटरस्टिशियल टिश्यू के अंदर कुछ प्रॉब्लम के वजह से आपका एक्यूट किडनी इंजरी हो रहा है, तो हम लोग उसको इंट्रारीनल में डालते हैं. नाउ व्हाट इज पोस्ट रीनल इज, इट इज ऑल अबाउट द यूरेटर, नॉट इनसाइड द किडनी. ओके, इट इज गोइंग टू बी इन किडनी, or it is going to be the problem somewhere seen in the urinary bladder. अगर यहाँ पर देखा जाता है तो हम लोग इसको बोलना चाहिए क्या? इसको see now the problem is been created here, okay, outside the kidney. So इसको हम लोग बोलेंगे post renal. Okay, these things are to be considered. So अभी हम लोग first देखेंगे कि हमारे pre renal में क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं. ओके, लेट मी चेंज द पेज फॉर यू. या प्री रीनल में क्या हो सकता है? सो प्री रीनल का मतलब है कि ब्लड सप्लाई में ही कुछ प्रॉब्लम जा रहा है, मैंने बोला है. सी फर्स्ट वाला कंडीशन जो प्री रीनल प्रॉब्लम को पोज कर सकता है वो है आपका हाइपोवॉलीमिया. सी आपको पता है कि हाइपो का मतलब लेस, वॉलीमिया का मतलब वॉल्यूम. यहाँ पर क्या होता है, आपका जो ब्लड वॉल्यूम है वो डिक्रीज्ड है. ओके, सो यहाँ पर डिक्रीज्ड ब्लड वॉल्यूम को हम बोलते हैं क्या? हाइपोवॉलीमिया बोलते हैं. तो आपका ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज हुआ, जिसके वजह से क्या होगा, आपका जो ब्लड प्रेशर है वो ड्रॉप डाउन, मीन्स आपका ब्लड प्रेशर जो है वो ड्रॉप डाउन हो जाएगा. ओके, सो ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज हुआ, ब्लड प्रेशर डिक्रीज हुआ. आप देखिए, अगर ब्लड प्रेशर कम हो जाता है तो क्या उतना एडिक्वेट प्रेशर रहेगा आपके रीनल आर्टरी में कि वो आपकी किडनी को परफ्यूज कर पाए? नहीं, क्योंकि ब्लड प्रेशर कम हो गया है तो आपका परफ्यूजन जो है, परफ्यूजन ऑफ किडनी जो है उसको क्या हो रहा है, वो भी डिक्रीज हो रहा है. तो अगर आपके किडनी को प्रॉपर ब्लड नहीं मिल रहा है तो क्या वहां पर इनफ ब्लड नहीं है, तो क्या होगा, आपके ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट जो है, आपका ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट जो है उसका प्रोडक्शन भी कम हो जाएगा, है ना? बिकॉज एडिक्वेट क्या नहीं है, प्रेशर नहीं है. क्यों प्रेशर कम हो गया? क्योंकि आपके वॉल्यूम कम हो गया. इस कंडीशन को क्या बोलेंगे हम लोग? हाइपोवॉलीमिया बोलते हैं. एक सेकेंड और एक कंडीशन है जहां पर हम लोग देखते हैं हार्ट फेल्यूर में. हार्ट फेल्यूर में जब आपका हार्ट फेल्यूर का मतलब ये होता है कि आपका जो लेफ्ट वेंट्रिकल है, आपका लेफ्ट वेंट्रिकल जो है, कभी कभी क्या होता है, ये वाला जो है आपका, इट डज नॉट
the left ventricle does not contract with the adequate pressure. So he's failing to put the adequate pressure to pump the blood. So यहाँ पर क्या हो रहा है? There is decrease in the adequate contracting pressure or contraction pressure of whom? Of your left ventricle. जिसके वजह से क्या होगा? आपका जो ब्लड फ्लो है वो डिक्रीज हो जाएगा, है ना, आपका कार्डियक आउटपुट कम हो जाएगा, आपका cardiac output is going to be decreased. So now what happens is there is no adequate blood flow, so there is reduced blood flow. reduced blood flow रहेगा तो क्या होगा? यहाँ पर आपका जो glomerular filtrate है वो अल्टीमेटली डिक्रीज होगा, है ना। जितना ज्यादा आपका ब्लड विथ एन एडिक्वेट प्रेशर के साथ आएगा तो वो जाके आपके क्या बोलते हैं, वांटेड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट को प्रोड्यूस करेगा। लेकिन ये कम हो गया है तो आपका जीएफ जो है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट रेट जो है वो कम हो जाता है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट जो बनता है वो डिक्रीज हो जाता है। सो अल्टीमेटली आपको ये याद रखना है कि जैसे ये प्रेशर बढ़ेगा तो आपका जो है ब्लड प्रेशर भी कम हो रहा है। अगर ब्लड प्रेशर कम हो रहा है तो क्या होगा? आपका ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कम होगा। ब्लड प्रेशर कहाँ कम हो रहा है? आपके एडिक्वेट कॉन्ट्रैक्शन ना रहने की वजह से ब्लड प्रेशर आपका कम है, ब्लड फ्लो कम है। अभी ये ब्लड प्रेशर कम होने की वजह से क्या आपके हार्ट, जिस लेफ्ट वेंट्रिकल जो है आपके पूरे बॉडी ऑर्गन्स को वो ब्लड सप्लाई करता है, तो जब एडिक्वेट प्रेशर नहीं है तो क्या आपके परफ्यूजन ऑफ ऑर्गन्स प्रॉपरली हो सकते हैं? हर एक ऑर्गन का परफ्यूजन हो सकता है? नहीं हो सकता, वो भी रिड्यूस्ड हो जाता है। जब ये रिड्यूस्ड है तो क्या होगा? आपका ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट भी कम होगा आपके किडनीज के अंदर। तो ये प्रॉब्लम हो रहा है आपके प्री रीनल इश्यू में, मींस आपके ब्लड सप्लाई में, आपके वेजल्स में ही कुछ प्रॉब्लम है जिसके वजह से ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट एडिक्वेटली नहीं बन रहा है। ये दो कॉन्सेप्ट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है बच्चों। सो आपके ब्लड वॉल्यूम कम हो गया, ब्लड प्रेशर कम हो गया है, और यूजुअली टिपिकली लोग जो जल जाते हैं उनमें ये होता है हाइपोवॉलीमिया, और जिनको स्टैब किया जाता है और जो ब्लड लॉस हुआ है कुछ मेजर एक्सीडेंट्स के वजह से, नहीं तो कुछ स्टैबिंग के वजह से या बर्न्स के वजह से भी बॉडी में ब्लड वॉल्यूम कम हो जाता है। ये वाला हाइपोवॉलीमिया जो मैं बोल रही हूँ आपको। सो वैसे ही हार्ट फेल्यूर में भी ये प्रॉब्लम हो रहा है। सो जब प्रेशर डिक्रीज हो रहा है इसका मतलब ये है कि आपके रीनल आर्टीरियल सिस्टम में, रीनल आर्टरी में और आपके एफेरेंट आर्टीरियोल में भी क्या हो रहा है? प्रेशर ड्रॉप डाउन हो रहा है, जिसके वजह से ये प्रॉब्लम पूरा हो रहा है और ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कम हो रहा है। समझ में आया आपको? अभी जाते हैं हम लोग दूसरे कंडीशन में। वो सेकेंड कंडीशन कॉज जो है वो है हमारा इंट्रिंसिक कंडीशन। इंट्रिंसिक, या इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंट्रा रीनल, इनसाइड। ये कहाँ पर हो रहा है? ये सब चीजें किडनी के अंदर ही हो रहा है। देखिए पहला चीज जो है किडनी के अंदर है कौन? यहाँ पर इज नथिंग बट आपके नेफ्रॉन्स है। ओके, सो हम लोग नेफ्रॉन के लेवल पे देखते हैं। नेफ्रॉन में क्या क्या पार्ट्स है बच्चों? द फर्स्ट वन इज लाइक आई विल टेक अप द ग्लोमेरुलस, यूजुअली इन्फेक्शन या प्रॉब्लम यहाँ देखा जाता है। और दूसरा चीज होता है आपके टिब्यूलर पोर्शन में भी कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। ओके, और दूसरा चीज जो है आपके जो टिश्यू है किडनी के अंदर का, जिसको हम लोग बोलते हैं इंटरस्टिशियल टिश्यू बोलते हैं, इसमें भी प्रॉब्लम हो सकता है। पहले हम लोग आते हैं ग्लोमेरुलस के पास। ग्लोमेरुलस में जो मैं इस प्रॉब्लम के बारे में बात कर रही हूँ उसको हम लोग बोलते हैं ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस बोलते हैं इस कंडीशन को। ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस, आइटिस का मतलब क्या है? आइटिस का मतलब होता है इन्फेक्शन। यूजुअली कभी कभी क्या हो जाता है आपके ये जो बाउमन्स कैप्सूल के, दिस इज योर ग्लोमेरुलस, ओके, एंड वी आर हैविंग दिस एफेरेंट आर्टीरियोल है, आपके इफरेंट आर्टीरियोल है, और ये है आपका जो टिब्यूलर पोर्शन है यहाँ पर। ओके, सो अभी देखिए यहाँ पर आपके ग्लोमेरुलस के अंदर कभी कभी, लेट मी टेक अ बिगर ग्लोमेरुलस, ओके, आई एम टेकिंग अ बिगर वन हियर। ओके,
सो दिस इज योर ग्लोमेरुलस. ओके, आपके ग्लोमेरुलस के अंदर क्या होता है, कभी कभी आपके एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्सेस आ जाते हैं. मींस आधा पार्ट आपके बैक्टीरिया होता है और आपका एंटीबॉडी जो है यहाँ पर उसको एनकाउंटर करता है, वो कॉम्प्लेक्सेस यहाँ आते हैं. दैट इज एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स जो है यहाँ आते हैं. जब यहाँ एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्सेस ग्लोमेरुलस के अंदर आते हैं तो देयर विल बी WBCs which are rushing here, which is इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स. ये WBCs आप सोचिए शायद ये न्यूट्रोफिल्स हो सकते हैं. तो ये क्या करते हैं यहाँ पर, these neutrophils are going to, now I'm writing here, so neutrophils क्या करते हैं यहाँ पर आके, वो they are going to release digestive enzymes. digestive enzymes release करते हैं. तो ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स क्या करते हैं, ये किसको अटैक करते हैं, आपके विसरल लेयर को अटैक करते हैं. विसरल लेयर में कौन है यहाँ पर, आपके पोडोसाइट्स है. सो आपके पोडोसाइट्स के ऊपर आपके डाइजेस्टिव एंजाइम्स काम करने लगते हैं, जिसके वजह से पोडोसाइट स्ट्रक्चर्स जो है वो डैमेज होने लगते हैं. तो आपके पोडोसाइट्स जो है डैमेज हो जाएंगे. तो क्या होता है, आपका ग्लोमेरुलस बिकम्स लीकी, वेरी वेरी लीकी. सो हु इज बिकमिंग लीकी हियर, आपका ग्लोमेरुलस जो है वो लीकी बन रहा है, जिसके वजह से ब्लड प्लाज्मा से लार्ज प्रोटीन्स जो है वो एस्केप करते हैं. कहाँ पर, आपके बाउमन्स कैप्सूल के अंदर आ जाते हैं. तो they will be traveling here into the Bowman's capsule now. Okay, so now what is happening, what did you see, when there is some infection going inside the glomerulus, the antigen antibody complexes, they reside in the glomerulus here. और क्या कर रहे हैं वो, जहां पर WBCs रश करते हैं, जैसे कि न्यूट्रोफिल्स. ये न्यूट्रोफिल्स डाइजेस्टिव एंजाइम्स रिलीज करते हैं जो विसरल लेयर के पोडोसाइट्स को डैमेज करते हैं, जिसके वजह से ग्लोमेरुलस लीकी बनता है और बहुत लार्ज प्रोटीन्स जो है वो एस्केप करते हैं, जो जनरली हम अल्ट्राफिल्ट्रेशन में इनको नीचे आते हुए नहीं देखा है. ओके, लेकिन अभी वो आए हैं कहाँ पर, बाउमन्स कैप्सूल के अंदर आए हैं. नाउ लेट मी टेक अ बिगर बाउमन्स कैप्सूल. ओके, ये मेरा बाउमन्स कैप्सूल हो गया है और ये है मेरा PCT स्टार्ट हुआ है यहाँ पर. सो this is the thing condition what I'm seeing. So now what I'm seeing is मेरा ग्लोमेरुलस ये है. तो यहाँ पर हमारे न्यूट्रोफिल्स रश किए हैं, उन्होंने क्या किया है यहाँ पर, they have damaged the podocytes. और यहाँ पर क्या आ गए हैं, who are leaking, proteins are completely leaking over here. और क्या होगा अभी, प्रोटीन्स यहाँ आने के वजह से क्या होता है, और दूसरा चीज देखिए यहाँ पर, let me draw my afferent arteriole and let me draw the इफरेंट आर्टीरियल. सो अब हमने देखा कि यहाँ पर आपके विसरल लेयर, आपके पोडोसाइट्स जो है डैमेज हो चुके हैं. तो जैसे आपके ये हो गया है तो क्या हो रहा है यहाँ पर, इज आपका ऑलरेडी प्रोटीन्स यहाँ पर है, ये डैमेज के वजह से बाउमन्स कैप्सूल के अंदर का जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है वो बढ़ जाता है. व्हाट इज HP? HP स्टैंड्स फॉर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर. जनरली अल्ट्राफिल्ट्रेशन में हम ये देखते हैं कि हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इन द ग्लोमेरुलस शुड बी हायर, है ना, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इन द ग्लोमेरुलस इज हायर. लेकिन ये कंडीशन में क्या हो रहा है, आपका ग्लोमेरुलस का हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इज बिकमिंग लोअर बिकॉज दिस इज मोर than the hydrostatic pressure in the glomerulus. तो क्या हो रहा है, आपका हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जब बढ़ रहा है बाउमन्स कैप्सूल के अंदर, और दूसरा चीज यहाँ पर ऑलरेडी प्रोटीन्स आ चुके हैं, तो प्रोटीन्स क्या करेंगे, कौन सा प्रेशर अप्लाई करते हैं, ऑनकोटिक प्रेशर अप्लाई करते हैं. तो ये ऑनकोटिक प्रेशर भी जो है बहुत हाई है. सो जिसके वजह से आपका ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट जो बनने वाला है वो बहुत कम हो जाता है, आपका GF कम होने लगता है, ये इंपॉर्टेंट है. सो आपका ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट इज बिकमिंग वेरी वेरी लेस. ये याद रखिए कि ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस जो है वो इरिवर्सिबल है.
इरिवर्सिबल है, इसको हम लोग रिवर्सिबल करके हेल्दी नहीं कर सकते पेशेंट को, बिकॉज infection is very severe and he is losing the large proteins. This is disturbing the pressures inside the capsule as well as in the glomerulus also. So what happens is the glomerular filtration rate is going to be very less, due to which what happens, the urine production also is going to be very less, राइट ये होता है आपके ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस कंडीशन। मैं आपको इनकी इमेजेस बताऊंगी एंड ऑफ द वीडियो में। अभी हम लोग जाते हैं आपके इंट्रिंसिक का सेकेंड रीजन जो है टिब्यूलर रीजन में कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होना। सो आपके टिब्यूलर पोर्शन में, नाउ लेट मी टेक अगेन माय this particular section, or I'll be taking the PCT here, and I'll be going for the what you call is afferent arteriole with the glomeruli part here. Okay, now come to this particular section, tubular portion में क्या हो रहा है यहाँ पर। See, efferent arteriole कैसे branch होके आता है यहाँ पर बताइए। Efferent arteriole is going to become what? It is going to become your vasa recta, right, which is running where, which is running parallelly with the nephron tubular part, right, like this. So अभी क्या होता है इस tubular portion में, problem क्या होता है आपका, let me first, so ये है मेरा PCT। ओके, सो अभी क्या हो रहा है, पहले हमने देखा एक कंडीशन जिसको हमने बोला था हाइपोवॉलीमिया। ये वाला मेन कल्प्रिट है, वो क्या कर रहा है इस आपके ब्लड वॉल्यूम कम करेगा, आपका ब्लड प्रेशर कम करेगा। तो ब्लड प्रेशर कम होने की वजह से आपके एफरेंट आर्टीरियोल में भी ब्लड प्रेशर कैसा है, कम है। यहाँ पर कम होने की वजह से क्या होता है इस ये वाला जो ब्लड जा रहा है आपके जो वैसा रेक्टा पेरिटिब्यूलर कैपिलरीज के अंदर जा रहा है, पेरिटिब्यूलर कैपिलरीज के अंदर कहां से जा रहा है, इफरेंट आर्टीरियोल के पास से जा रहा है। सो ये वाला क्या ला रहा है, इट इज हैविंग लोड्स ऑफ ऑक्सीजन है इनके पास और बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स है। ओके, आपको पता है कल मैंने आपको बताया था कि प्रॉक्सिमल कन्वल्यूटेड ट्यूब्यूल में जो सेल्स है वो कैसे है, वो सेल्स हाईली एक्टिव है, दे आर हाईली एक्टिव। तो हाईली एक्टिव क्यों है, बिकॉज उनके पास कौन है, सोडियम पोटेशियम के पंप्स है, उनको पंप करने के लिए क्या चाहिए, एटीपी। तो हाईली एक्टिव का मतलब क्या है, उनके पास ज्यादा से ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया है जो उनको प्रोवाइड कर रहा है, क्या, एटीपी प्रोवाइड कर रहा है सॉल्ट्स को पंप करने के लिए। तो ये हाईली एक्टिव है तो इनको क्या लगेगा, ऑक्सीजन लगेगा और न्यूट्रिएंट्स भी तो लगेंगे, है ना। सो व्हाट इज हैपनिंग इज जैसे यहाँ पर प्रेशर कम हो गया है तो आपका जो ब्लड प्रेशर कम हो गया, जिसका मतलब क्या हुआ है, आपका ब्लड वॉल्यूम भी कम है। तो जैसे जैसे ब्लड यहाँ से रीच होता है आपके पेरिटिब्यूलर कैपिलरीज के अंदर, आपके ब्लड प्रेशर लो होने की वजह से, ब्लड वॉल्यूम लो होने की वजह से यहाँ पर ऑक्सीजन भी कम है और न्यूट्रिएंट्स भी कम आ रहे हैं, जिसके वजह से ऑक्सीजन शॉर्टेज हो रहा है, न्यूट्रिएंट शॉर्टेज हो रहा है। तो अभी मुझे बताइए, मैं एक पर्टिकुलर प्रॉक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल ड्रॉ कर रही हूँ। ये है आपके सेल्स जो लाइन कर रहे हैं, जो क्यूबॉइडल सेल्स है यहाँ पर ये लाइन कर रहे हैं। ये है मेरा प्रॉक्सिमल कन्वल्यूटेड ट्यूब्यूल है, ये मेरा प्रॉक्सिमल कन्वल्यूटेड ट्यूब्यूल। सो जैसे यहाँ पर वो ब्लड वेसल आ रहा है, ऑक्सीजन डिफ्यूज होगा और आपका न्यूट्रिएंट्स भी डिफ्यूज हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर कैसा है, लेस ऑक्सीजन है और लेस न्यूट्रिएंट्स है यहाँ पर। तो क्या होता है, यहाँ के सेल्स शॉर्टेज ऑफ न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन की वजह से मरने लगते हैं, दे स्टार्ट डाइंग, they start dying. So now after the death they are dying, so there is a death. So death of the tissue is called in biology as what, necrosis,
आपने बॉटनी में पढ़ा होगा। तो यहाँ पर आपके सेल्स डाई हो रहे हैं, मर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होते हैं, दे विल लीव द बेसमेंट मेम्ब्रेन, इसको छोड़ के कहाँ पर आते हैं, दे जस्ट फॉल इनटू द ल्यूमिनियर, ये पूरे मरे हुए सेल्स है जो यहाँ पर पैक हो जाते हैं। ओके, सो अभी पैक होने की वजह से क्या होता है, यहाँ से आपके जो बाउमन्स कैप्सूल के अंदर से जो फ्लूइड आना चाहिए पीसीटी के अंदर, क्या वो फ्रीली फ्लो होके यहाँ पर आ सकता है, आएगा, लेकिन उसको कौन क्या करेगा, ये डेड सेल्स जो है ऑब्स्ट्रक्ट करेंगे। किसको ऑब्स्ट्रक्ट करेंगे, फ्लो को ऑब्स्ट्रक्ट करेंगे। सो आपके फ्लो ऑब्स्ट्रक्ट होने की वजह से क्या वो फिल्ट्रेट जो है आ सकता है लूपा फ्रेंडली में, नहीं, डीसीटी में जाएगा नहीं, और क्या वो जाएगा आपके कलेक्टिंग डक्ट्स के अंदर, नहीं जा पाएगा। तो ये एक बड़ा प्रॉब्लम है। तो क्या आप इसको रिपेयर कर सकते हो, हाँ, लकीली ये वाला जो है इसको हम लोग बोलते हैं एक्यूट टिब्यूलर नेक्रोसिस बोलते हैं, ये रिपेयरेबल है। वी कैन एक्चुअली रिवर्स दिस कंडीशन, we can reverse this condition. How can you do that? By just increasing the blood pressure. You just increase the blood pressure, everything is going to be okay. After the pressure is being built up, what happens is this will be flushed away through the urine, ye cells jo dead cells hai. Okay, this has to be treated by increasing the blood pressure. That can be even done by the renin angiotensin mechanism also. ओके, सो ये वाला है आपके टिब्यूलर पोर्शन में जो प्रॉब्लम हो रहा है, और उसको हमने बोला, उसको हमने बोला क्या है, एक्यूट टिब्यूलर नेक्रोसिस बोला है। ओके, ये वाला है। नेक्स्ट वाला जो है लास्ट में आपके इंटरस्टिशियल टिश्यू ऑफ किडनी में इंफेक्शन रहेगा। तो ये कैसा होता है, यूजुअली हम लोग क्या करते हैं, इस ये हमारा किडनी, यूरेटर, ओके, ये हमारा ब्लैडर, यूरेथ्रा है यहाँ पर। ओके, सी ना व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज, जनरली हमारे इंडियन टॉयलेटरी सिस्टम में, ओके, हम लोग जो है वी वॉश फ्रॉम बैक टू फ्रंट। ओके, जब हम लोग पूप करते हैं वी वॉश इट फ्रॉम बैक टू फ्रंट। सो जो आपके फीसिस में या पूप में जो बैक्टीरिया रहता है वो वाला एंटर हो जाता है कहाँ पर, आपके यूरेथ्रल एनल ओपनिंग में एंटर हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपको आता है यूरिनरी इन्फेक्शन आता है। वो यूरिनरी इन्फेक्शन अगर टाइम पे आप ट्रीट नहीं करते हो इसको, तो वो स्लोली स्प्रेड होता है यूरेथ्रा में, ब्लैडर में, और वो यूरिनरी इन्फेक्शन जाता है यूरेटर्स में, और वो स्लोली पहुंच जाता है कहाँ पर, आपके इंटरस्टिशियल टिश्यू ऑफ किडनी में पहुंच जाता है। सो आई एम talking about the urinary infection, okay, and this bacteria entered from the what we call is poop. Okay, so while we wash, so it is entering from that into the urethral area and enters, and if it is persistent retaining, then what happens is it enters into the kidney interstitial tissue, and we usually call it as पाइलोनेफ्राइटिस। इसको ट्रीट करना बहुत जरूरी होता है जब इट इज गोइंग टू बी इन द यूरेथ्रा ओनली। यूरेथ्रा में जब है तो उसको ट्रीट करेंगे तो दैट इज well and good. अगर नहीं है तो the infection spreads into ureter and kidney, and this is a very severe problem, and the patient suffers with a very bad ache as well as the fever. Okay, this has to be treated. So ये infection कहाँ पर है, that is inside the interstitial tissue of the kidney, वहां तक गया है वो वाला। So ये चीजें हैं जो आपको याद रखना है। तो हमने क्या क्या देखा है, इज वी हैव सीन अबाउट व्हाट, वी हैव सीन अबाउट द acute किडनी इंजरी, और उनका कॉजेस हमने बताया, प्री रीनल हमने बताया, इंट्रिंसिक वाला, पोस्ट रीनल बताया है। हमने प्री रीनल देखा है हाइपोवोलीमिया के वजह से और हार्ट फेलियर के वजह से।
जो एंड इंट्रिंसिक में देखा कि ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस हो सकता है, या ट्यूबुलर पोर्शन में होता है तो एक्यूट ट्यूबुलर नेफ्राइटिस है। और दूसरा चीज क्या देखा, वो इंटरस्टिशियल टिश्यू ऑफ किडनी में भी इंफेक्शन फैल सकता है, जो आपका एक्यूट किडनी इंजरी कर सकता है। ये लकीली एक्यूट किडनी इंजरी जो है वो रिवर्सिबल है, हम ट्रीट कर सकते हैं इस चीज को। नाउ लास्टली कमिंग ऑन टू पोस्ट रीनल। पोस्ट रीनल में क्या होता है इज लाइक आपके usually kidneys may, let me come, I'll what I'll do is I'll share the images with you children now. Okay, let us go back to this now. What I'll do is I'll be sharing my screen with you such that I can show you those images. Okay, so I'm talking about the post renal now. पोस्ट रीनल का मतलब क्या है, यूरेटर में और यूरिनरी ब्लैडर में प्रॉब्लम होने लगा या होने लगता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, पोस्ट रीनल। अभी देखिए क्या होता है यहाँ पर, इस कभी कभी स्टोन फॉर्मेशंस हो सकते हैं यूरेटर के अंदर, जिसके वजह से यूरिन ऑब्स्ट्रक्ट होता है। यूरिन कहाँ पे फॉर्म हुआ है, नेफ्रॉन के अंदर और कलेक्टिंग डक्ट्स के अंदर। कलेक्टिंग डक्ट किधर जाएगा, आपके पिरामिड्स के अंदर जाएंगे। पिरामिड्स में कहां पर आएंगे, पैपिला में आएंगे, फिर जाएंगे कैलिसस में और पेल्विस में, फिर यूरेटर के अंदर आएंगे, है ना। सो यूरिन इज फ्लोइंग फ्रॉम किडनीज टू यूरेटर, लेकिन यहाँ पर आपका यूरिन फ्लो जो है ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है स्टोन। सो ये प्रॉब्लम हो सकता है, ये पोस्ट रीनल प्रॉब्लम है। ओके, जिसकी वजह से भी आपका यूरिन प्रोडक्शन जो है कम हो रहा है। नेक्स्ट वाला देखिए, कभी कभी यू नो दैट मैंने लास्ट वीडियोस में बताया है कि आपके यूरेथ्रा के आजू बाजू में कौन रहता है। यहाँ पर वी आर गोइंग टू सी whom, we are going to see the what we call is, we are going to check whom is the प्रोस्टेट ग्लैंड है। यहाँ पर जब प्रोस्टेट ग्लैंड एनलार्ज हो जाता है तो क्या हो जाता है, वहां पर इट इज गोइंग टू अप्लाई प्रेशर ऑन द यूरेथ्रा, जिसकी वजह से क्या होता है, आपका यूरेथ्रल केनॉल जो है कंप्रेस हो जाता है और उसका नैरो डाउन हो जाता है, जिसके वजह से इजी यूरिन फ्लो नहीं रहता। तो यूरिन फिर से रिस्टोर हो रहा है, कहाँ पर, ब्लैडर के अंदर ही। तो आप यूरिन ज्यादा पास नहीं कर पाते हो। और दूसरा चीज ये है, कभी कभी क्या हो जाता है, आपका यूरिन इतना अक्यूमुलेट यहाँ पर हो रहा है कि वो यूरिन, इट इज ट्राइंग टू डैम्पिंग बैक, इज नथिंग बट इज मूविंग बैक इनटू द यूरेटर। मैं स्टोन का कंडीशन नहीं बात कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ जब आपके प्रोस्टेट ग्लैंड एनलार्ज होते हैं, यूरेथ्रल केनॉल कम हो जाते हैं और ब्लैडर के अंदर आपका यूरिन रिस्टोर हो रहा है। तो वो अगर ऐसे ही रिस्टोर बहुत दिनों के लिए हो जाता है तो वो यूरिन पास हो जाता है आपके यूरेटर्स के अंदर और स्लोली स्लोली दे गेट एंटर्ड इनटू वेयर, दे गेट एंटर्ड इनटू वेयर, यू नो, इनटू द किडनी। सो अगर आपका यूरेटर में पानी स्टोर होके यूरेटर स्वेल हो रहा है, उस कंडीशन को हम बोलते हैं हाइड्रो यूरेटर। ये नॉर्मल वाला है, ये वाला यहाँ पर वाटर इज यूरिन एक्यूमुलेशन हुआ है। अगर आपके किडनी में यूरिन एक्यूमुलेशन हो रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोनेफ्रोसिस। ओके, ये समझा। अभी ये आपको इंपॉर्टेंट है कि जैसे आपके किडनी में यूरिन पहुंच रहा है, सो दैट इज गोइंग टू गेट बैक इनटू द कैलिसिस, राइट, goes into the papilla and goes into where, the nephron। अगर नेफ्रॉन के अंदर यूरिन accumulation वैसा ही है, that is I'm speaking about, अगर if there is accumulation of the fluids or filtrate and if the urine is not being pumped out, what happens, you know, आपके नेफ्रॉन के अंदर tubular secretion नहीं होगा। ओके, जैसे जैसे आपका हाइड्रोनेफ्रोसिस होता है और यूरिन पास नहीं हो रहा है तो आपके नेफ्रॉन्स के अंदर का फिल्ट्रेट रिटेंशन की वजह से क्या होता है, इज वहां पर ट्यूब्युलर सिक्रीशन नहीं होगा, जिसके वजह से टॉक्सिन्स जो है, कुछ आयोन्स जो है वो रह जाएंगे आपके ब्लड के अंदर, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस नहीं होगा, एसिड बेस बैलेंस नहीं होगा और बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट किए जाते हैं। ओके, सो दिस इज अबाउट योर what we call as post renal problem। कभी कभी ट्यूमर्स भी होते हैं एक्सटर्नली यूरेटर्स के ऊपर, जिसके वजह से भी हाइड्रो यूरेटर
हो जाता है और आपका यूरिन अक्यूमुलेशन रह जाता है आपके यूरेटर्स के अंदर ही। ओके, मैं आपको दिखाती हूँ अभी जो हमने पढ़ा है उनके इमेजेस देखते हैं। तो ये है आपके एक्यूट टिब्यूलर नेफ्रोसिस, सॉरी नेक्रोसिस, जो आप देख सकते हो आपके पीसीटी में एज वेल एज आपके असेंडिंग लूप ऑफ हेनली के अंदर देख सकते हैं। ओके, ये वाला है। और दूसरा जो स्लाइड है वो है आपका नेफ्रॉन का ही, जहां पर हम देख रहे हैं, मैंने बोला था कि आपके सेल्स जो है उनको न्यूट्रिएंट सप्लाई ना आने के वजह से और आपको ऑक्सीजन सप्लाई ना आने के वजह से सेल्स यहाँ पर डैमेज हो रहे हैं, बेसमेंट मेम्ब्रेन छोड़ के डेथ की वजह से ये ब्लॉक कर देते हैं आपके लूमेन को। सो ये है आपका वो वाला सिस्टम जहां पर ये कर रहे हैं ब्लॉकेज, जिसके वजह से आपके ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट जो है वो डिक्रीज हो रहा है। ओके, सो व्हाट इज द नेक्स्ट वन आई हैव इज हाइपोवॉलीमिया। देखिए हाइपोवॉलीमिया क्या होता है इज आपके ब्लड वॉल्यूम, आपका ब्लड कॉम्पोजिशन कम हो गया है। ये आपके जनरल नॉर्मल वाला ब्लड वेसल है एंड ये है आपका हाइपोवॉलीमिया। ये कभी होता है बर्न्स के दौरान या आपके ब्लड लॉस एक्सीडेंट्स की वजह से, स्टैबिंग की वजह से हो सकता है। ये चीज है वो है हाइपोवॉलीमिया। ओके, नेक्स्ट वाला देखते हैं हम लोग, अनदर वन। तो आप देखिए हाइपोवॉलीमिया का एक स्लाइड है, अगर आपको याद रखना है, नोट्स बनाना है, तो ये वाला आपको हेल्प करेगा। हाइपोवॉलीमिया की वजह से क्या हो रहा है आपका जो परफ्यूजन है वो भी कम हो जाता है। ओके, नाउ नेक्स्ट कमिंग ऑन टू अनदर वन, लेट मी शो यू। This is going to be the one where I spoke about the proteins. मैंने बताया था आपको एंटीजन एंटीबॉडी वाले कॉम्प्लेक्सेस इधर आने के बाद आपके WBCs डाइजेस्टिव एंजाइम्स को प्रोड्यूस करते हैं जो पोडोसाइट्स को खराब करते हैं, जिसके वजह से लार्ज प्रोटीन मॉलिक्यूल्स निकलते हैं। ये है वो वाला स्लाइड। Okay, now let me come to another one which is going to be the last one that you have seen already. This is about what? This is about the urine retention inside the bladder, inside the ureter, inside the kidney, which is causing hydroureter, hydronephrosis, जिसके वजह से tubular secretion रुक जाता है और toxins will be trying to enter into your ब्लड स्ट्रीम। ओके, आई होप चिल्ड्रन ये वाला आपको समझ में आया है। प्लीज आप इसको अच्छा सा पढ़िएगा। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में क्रॉनिक किडनी इंजरी को इंट्रोड्यूस करवाती हूँ। ओके, आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड। इफ यू हैव लाइक दिस वीडियो एंड दिस इंफॉर्मेशन, प्लीज try to hit the like button. Okay, subscribe my channel, try to share it to your friends. Okay, that is going to help them too. Thank you very much. Thank you all.